Hello dear student, how are you? I am Vipal Sharma, teacher of physics, and I am here to again represent another online lecture of current electricity, and that is module A. So actually we are discussing about resistance. So again we will discuss about resistance. Now in this topic we will discuss about combination of resistance. मीन्स हम रेजिस्टेंस को का कॉम्बिनेशन देखेंगे, मीन्स इन सीरीज एंड पैरेलल. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट in series. So dear student, resistance in series. What do you know mean by the word series? Because if these are the resistance, this is R1, this is R2, and this is R2. So dear student, these three resistances R1, R2 and R3, they are connected with a battery of V volt, right? So first resistance, another is connected with this, and this is also connected with the second one. So they are in series. Like पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस फिर नेक्स्ट उसमें फिर नेक्स्ट, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज. कि सारे एक टर्मिनल से नहीं कनेक्ट करते. बट डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज a quantity is constant, that is current. So current is same for the circuit, that is I. In series you can't change the current or charge because it remains constant, but there is a thing that is divided. Which one? Potential difference. So potential is divided for R1 V1, and for R2 the potential is V2, and for R3 the potential is V3, right? And this V1, V2 and V3 is the part of V. So step, we know V is equal to V1 plus V2 plus V3, right? So for first resistance, current is same, right? So V1 is V is equal to IR, I is same and R1, first equation. For second, potential difference, that is IR2, and for 3 that is IR3, equation second and equation third. This is the combination of three resistance. Now dear student, we know V is equal to V1 plus V2 plus V3, because ये जो V1 V2 और V3 है ये कॉम्बिनेशन है V का, V में से तो निकल के गया है ये. एंड लेट्स पुट इन द वैल्यू IR1 plus IR2 plus IR3, and we know V is equal to IR, complete resistance R overall. So IR is equal to, taking I common, R1 plus R2 plus R3. Now I is cancelled from I. Here R is equal to R1 plus R2 plus R3. So student, in combination of series, in series combination, the total resistance is the sum of all the resistance. Simply it is addition. If we connect the resistance in series, definitely the result will be R is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the combination of resistance in series, right? Perhaps it is clear to all. Simply हम क्या करते हैं, हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट उसमें हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करंट क्या होता है? सेम. पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड. तो मैं ओवरऑल पोटेंशियल ही निकालना होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर सबका एडिशन, क्योंकि जो चीज डिवाइड होती है हम उसी के बिहाफ पे करते हैं. सो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज. सो सीरीज के लिए रिजल्ट क्या है हमारे पास?
R is equal to R1 plus R2 plus R3. Now discuss about resistance in parallel. Resistance in parallel. So student, what is the combination of parallel? Suppose we are given three resistance like this. Now this single wire in this manner. Left hand side of each resistance connected with single together. Also this one is together, and this end is connected to a battery. So this combination is called combination of resistance in parallel, like this. So this is the R1 resistance, R2 resistance, and R3 resistance. This one, V is the volt. You know, same potential everyone. So in parallel, V remains constant. You can't change the potential. I have already told you that in series combination only current constant, current or charge. But in parallel combination, potential is constant, current is divided or distributed. Here, for R1 will take current I1, and this will take current I2, and this will take current I3. So I is the combination of I1 plus I2 plus I3. Right? So actually potential is constant, because so we will find out the value of I1, I2 and I3 in this formula, and then combine together. So here I is equal to, because V is equal to IR, so I is equal to V by R, that is V by R1, equation first. And is this clear? Yes. I2 V by R2, and I3, that is V by R3. So these are the second and third equations. Combined together, I is equal to I1 plus I2 plus I3. Putting the value I1 V by R1 plus V by R2 plus V by R3, and I is equal to V by R. V by R, here taking V common, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, which cancel from the. So dear student, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So in parallel combination, the result is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus reciprocal, you can say. And in case of series, we will just simply add because simple addition, right? R is equal to R1 plus R2 plus R3. But in this combination, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, right? So this is a very simple combination, series and parallel, right? And there will be a lot of numerical. At last we will practice them. So perhaps it is clear to all, resistance in series and parallel. So student, next topic is, what is cell? आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है. So cell, it is a device. It is a device which provides necessary potential difference to the circuit to maintain current in the circuit. So student, actually what is cell? A battery क्या करती है? It provides the necessary potential difference current
से मेंटेन करंट रहता, हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, मोबाइल के अंदर भी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल में सर्किट होता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें नेसेसरी करंट देता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी, राइट। अब इसी सेल डिनोटेड बाय, आपको पता है सेल इससे डिनोट होता है, दिस लार्ज वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। सो दिस इज द सेल। क्या होता है सेल? सेल जो सर्किट में नेसेसरली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही क्या है, जिससे क्या रहता है, करंट सर्किट में करंट को मेंटेन करता है। अब एक और टर्म है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत समझना जरूरी है कि ईएमएफ क्या होती है, ठीक है। सो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ध्यान से समझो इसको। जो हम बात करते हैं ईएमएफ की, अब हमारे पास एक बैटरी होती है, राइट, दिस वन, जो घरों के अंदर भी आपने देखी होगी डिफरेंट डिवाइस में, दिस टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से एक सर्किट गया, रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव से कनेक्ट, यहां पे ये की लगा दी। सो यहां पर जो इन टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज ईएमएफ और टर्मिनल। सो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी when circuit is open called EMF। ये मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये बैटरी 12 वोल्ट की है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं, खाली बैटरी है, तो बैटरी के टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का मैक्सिमम मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, नथिंग, क्योंकि कीटोन में तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो जब तक खाली बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या कहलाता है, ईएमएफ। एक्चुअली देखो, हमारे पास कोई भी बैटरी होती है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस बैटरी के अंदर सबसे बड़ी बात, हम क्या मिलाते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, सिंपली H2SO4 या अन्य अदर। सो ये केमिकल की खास फैसिलिटीज में क्या होती है कि ये जैसे हम इसको चार्जिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव को एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ कर देता है, जिससे क्या होता है, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस करीड और पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज, क्योंकि V इज इक्वल टू E इंटू डी। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हुई, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। और यू कैन से सिंपल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one terminal to another। उस यूनिट चार्ज जिसकी वैल्यू 1 होती है, उस पे जो कितना काम करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ईएमएफ को मेंटेन करेगा। वो सिंपली एक लैंग्वेज बनती है फिजिक्स की, जो डेफिनेशन बनती है, राइट। सो दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ तब होती है जब सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, राइट। सो ईएमएफ होती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन सर्किट इज ओपन। अब बात आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डिनोटेड बाय वी, वो ई से डिनोट करते हैं, हम उसके अलग अलग सिंबल बनाते हैं। सो इसमें हमारे पास अगर ये बैटरी है, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर्किट लगा दिया, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस P यहां पर, दिस इज V ऑल्सो R। सो क्या कहेंगे हम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी
when circuit is closed, when circuit is closed मतलब इस की को हमने क्लोज कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा, and that is called terminal potential difference, that is V is equal to IR. So dear student, क्या होता है terminal potential difference? Terminal potential difference, so what is terminal potential difference? मतलब जब सर्किट से बैटरी से करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो स्टूडेंट, ये बेसिक टर्म है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है. अब एक और छोटी सी टर्म आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस. सो एक बात देखो, अब बहुत सारे पूछते हैं कि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होता है. यस, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा जो ईएमएफ है ई, ये भी वोल्टेज होती है वोल्ट, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट, हर किसी की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट. चाहे वो ईएमएफ है चाहे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पर डिफरेंस कितना है? ये किसके अंदर होगी? ये ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट के अंदर. अब तो हमारे पास ईएमएफ की भी क्या होगी? आई इंटू आर. ये आर लगातार चेंज हो सकता है, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. सो ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट. सो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा, क्योंकि ईएमएफ वोल्टेज होता ही क्या है? जब करंट को क्या मिल जाए? रेजिस्टेंस. तो डेफिनेटली डिपेंड करता है इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, राइट. और मटेरियल होता है बैटरी के अंदर, वो किसका काम करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस होता है, अगली बात समझ में. तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस एक बैटरी के अंदर होता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो एक अपोजिशन ऑफर्ड करता है, किसको? बाय किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ इट्स सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. मतलब जब बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम लिक्विड को बोलते हैं जो केमिकल होता है, और इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच जो प्रोवाइड करता है, अपोजिशन करता है, ठीक, करंट को रोकने का काम करता है. जो करंट को रोकेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, आई इंटू आर, राइट. सो दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. परहैप्स इट इज क्लियर टू ऑल कि क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है स्टूडेंट, एंड थैंक्स फॉर दिस मॉड्यूल. In the next module, we will discuss about cells, combination of cells, and relation between EMF and terminal potential difference. Thank you. Have a nice day.